آپ ایسے لوگوں سے جانور ذبح کروا لیتے ہو جن کو تکبیر کہنا نہیں آتی. یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے. جی ایک الفاظ پہ جانور حرام ہو جاتا ہے. آپ لاکھوں روپے لگا رہا ہو اور جو نا 2 نمبر آدمی کے ذمے وہ دے دو گے اس کو ذبح کر دو. اب کیسے مطلب اب کیسے چھری پھیرنا ایک جاندار چیز پہ ایک بہت بڑے دل کا کام ہے. یہ تو حکم ربی ہے کہ آپ چھری پھیرو. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فیروزہ اینڈ میں آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گی پوڈ کاسٹ. ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے ریئلٹی چیک، اس کا ایک نئے ایپیسوڈ میں. کیونکہ بقرہ عید کا سیزن چل رہا ہے، میرے بیک گراؤنڈ میں بھی بقرہ عید کا سیزن ہے، لیکن بقرہ عید از ناٹ کمپلیٹ ایک شخص کے بغیر، اور کسائیوں کی بہت ڈیمانڈ ہے. تو آج ہم نے حاجی صاحب کو انوائٹ کیا ہے ہمارے شو پہ ایز اے گیسٹ. آج ہم حاجی صاحب سے سوال پوچھتے ہیں، ان کی کہانی، ان کی زبانی. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے. اچھا، آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ اس پروفیشن میں ہیں، کتنے سالوں سے ہیں، کیا یہ فیملی بزنس ہے، یا تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں. بھائی الحمدللہ بچپن سے ہمارا خاندانی کام یہی ہے، سمجھے نا. اس علاقے میں ماشاءاللہ کم از کم 50 سال 55 سال ہو چکے ہیں. اسی علاقے میں دکان ہے، سمجھے نا. اللہ کی رحمت سے اسی علاقے میں خدمت کرتے ہیں لوگوں کی، جانور وغیرہ ذبح کرتے ہیں. لیکن میں لوگوں کو یہی کہوں گا کہ لوگ برساتیوں کی طرف زیادہ جاتے ہیں. میری گزارش ہے کہ اچھے لوگوں کو دیکھو، جو دیندار ہوں، جو ذبحی کا طریقہ جانتے ہوں، جو سمجھتے ہوں کہ ذبح کیسے کیا جاتا ہے. ایسے لوگوں کو آپ جو نا تھوڑے سے جو نا پیسے بچانے کی خاطر آپ. لیکن لوگوں کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ کون موسمی ہے، کون یہ 12 مہینے پروفیشن ہے، اس کو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ پھر لوگوں کو ایسے پتہ چلے گا نا کہ آپ اپنے علاقے میں دیکھو نا، اپنے آس پاس دیکھو. اچھے لوگ آپ کی دکان، اگر گوشت بھی آپ کھاتے ہوں گے نا، وہ دیکھیے آپ کے علاقے میں کون سا جو نا صحیح آدمی کام کرنے والا ہے. آپ اس سے رابطہ کرو. آپ ایسے لوگوں سے جانور ذبح کروا لیتے ہو جن کو تکبیر کہنا نہیں آتی، آپ ان کو جانور ذبح کرنے کے لیے دے دیتے ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے آپ کا؟ لاکھوں روپے آپ خرچ کر رہے ہو قربانی کے جانور لانے میں، ہیں آپ کٹائی میں جو نا بچا رہے ہو پیسے. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ آپ تو اپنی قربانی کو ضائع کر رہے ہو، اور جانور کے لیے بھی اذیت ہوگی. جی آپ جو نا تکبیر کا مسئلہ آپ دیکھیے. تکبیر کا کہنا بھی ایک مسئلہ ہے بہت بڑا. سیکھنا پڑتا ہے اس کو. یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے. جی اب ان لوگوں کو کیا پتا، بیچاروں کو یہ کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر. ایسا نہیں ہے، بسم اللہ اللہ اکبر یہ ہے اصل تکبیر. اصل تکبیر یہ ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. برساتی آ جاتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، جانور حرام ہو جاتا ہے بھائی. اس طرح آپ مسئلے کی طرف آئیں، آپ مسئلے کو دیکھیں ذرا. ایک الفاظ پہ جانور حرام ہو جاتا ہے. آپ لاکھوں روپے لگا رہا ہو اور جو نا 2 نمبر آدمی کے ذمے وہ دے دو گے اس کو ذبح کر دو. اچھا، یہ جانور گرانے کا کیا اس کا بھی کوئی طریقہ ہوگا؟ یا ان کو بیچاروں کو جانور ذبح اپنی جان بچانے، جانور تو کیا گرائیں گے، وہ اپنی جان بچانے. پہلے اوریجنل کا تو بھائی اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو سیکنڈوں میں جانور گرا دیتا ہے. وہ دیکھتے دیکھتے آپ دیکھ رہے ہو وہ جانور گرا رہا ہے، سیکنڈوں میں جانور نیچے آ جاتا ہے. جانوروں کو اذیت نہیں دیتے ہم سیکنڈوں میں گراتے جانوروں کو. اور آپ کا 50 ایئرز ایکسپیرینس ہے، 50 سال کا ایکسپیرینس ہے. ہمارا تو خاندانی کام یہی ہے. بچپن سے ہماری تو آنکھ ہی اس کام میں کھلی ہے. اب کیسے چھری پھیرنا ایک جاندار چیز پہ ایک بہت بھائی دیکھیے نا، بڑے دل کا کام ہے. یہ تو حکم ربی ہے کہ آپ چھری پھیرو، سمجھے نا. اگر آپ ترس کھاؤ گے تو آپ کا جو ہے وہ معاملہ صحیح نہیں رہے گا. ترس کھانا نہیں ہے آپ نے. بسم اللہ اللہ کے حکم سے آپ ذبح کر رہے ہو، اور اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہو. بات ہی ختم ہو گئی. بالکل. اچھا آپ بتائیں، یہ کمیلدار اور قصاب میں کیا فرق ہے؟ اصل معاملہ ہے قصاب اور قصائی. قصاب اور قصائی. قصاب اور قصائی. قصاب جناب ادب کا لفظ ہے، ایک تہذیب کا لفظ ہے. اور قصائی جو ہے ایک انڈیا کے زمانے سے، یہ ہندوؤں کے زمانے سے چلا آ رہا ہے قصائی. تو پرانے لوگوں کے ذہن میں وہ یہ قصائی، اصل قصاب ہے. سو جو ورڈ قصائی ہے یہ ہندو اوریجن سے ہے. اس زمانے میں یہ الفاظ قصائی کا تھا. اچھا. ذبح کرنے والا، جانور کو ذبح کرنے والا قصائی. اصل الفاظ جو ہے قصاب ہے. اور جو اردو میں اٹس مور قصاب. تو ہم جو قصائی بولتے ہیں اٹس مور انڈین اوریجن، اٹس ایکچولی قصائی. اس زمان میں چل رہے ہیں.
कसाई वाला ये अल्फाज आज जो है मुझे ना, भी पता चला कसाई कि वाला अल्फाज। ओरिजिनल जो उर्दू का फॉर्म है वो जी, जी, कसाब है। कसाब है। अच्छा, ये कसाब मुझे जहाँ तक लगता था कि कसाब कोई वो है, कास्ट है, जैसे आई थिंक कुरैशी भी कोई कास्ट कुरैशी है, हमारी कौम कहलाती है, कौम। समझे। एक ये हमारी जो overall बिरादरी है, कसाब एक भी- बिरादरी जो है ना, हाँ। कसाब कुरैशी, ये कुरैशी कहलाती है हमारी जो पूरी बड़ी बिरादरी जो है ना गोश्त का काम बिल्कुल। करने वाली, ये कुरैशी कहलाती है। अच्छा, एक दिन में जैसे आपका तो पूरा 12 महीना ही हाँ, आपका ये काम अल्हम्दुलिल्लाह। होगा, तो ईद पे जब बकरा ईद आती है तो कैसे लोग आपको वो करते हैं, आप जैसे दिन में कितनी रात को- आप जानवर की जी। आपकी वो अपॉइंटमेंट्स होती है, कितनी कुर्बानियाँ कर लेंगे? असल में बात ये है कि बंदों के ऊपर होता है कि कितने बंदे हैं आपके पास। हाँ। अब फर्ज करो आप 2 बंदे हैं, तो 2 बंदे कितने जानवर ज़िबा करेंगे? मसला ये दो है ही करेंगे। ना, 2 या 3 4 कर लेंगे, हम्म। 5 कर देंगे। अब जितनी टीम का हिसाब किताब होता है, जैसे मतलब है कि अगर 20 बंदे हैं तो उसके हिसाब से जो है ना वो काम को कवर करना पड़ता है ना, किसी को शिकायत भी ना हो, काम सबका पूरा हो जाए। हर आदमी कहता है कि नमाज के बाद हमारा काम कर दो, वो भी देखना तो पड़ता है। आपके लास्ट ईयर आपने बकरा ईद में कितने जानवर की वो की थी? आपकी टीम बड़ी होगी आई हाँ, थिंक, ज़ाहिर बात है, टीम आपकी बड़ी 25-30 होगी। बंदे होते हैं। 25-30 जी बंदे। हाँ। ओके, हाँ। सो आप पर्सनली तो नहीं करते होंगे अब नहीं, नहीं। कुर्बानियाँ, आपकी टीम हाँ, में जो वो टीम में होंगे। माशाल्लाह वो नहीं, ज़िबा तो मैं ही करता हूँ। ज़िबा आप करते हैं? ज़िबा ही जो ना तकबीर वाला मामला मैंने अपने हाथ में रखा हुआ है, बाकी सारा काम सब में वो आप लाइक हर जानवर को आप ही वो ज़िबा मैं ही तकबीर करता से हूँ। ज़िबा अल्लाह का करना, शुक्र है। फिर बाकी जो खाल उतारना या हाँ, जो वो मामला चलते रहते हैं फिर। ओके। ज़िबा ही वाला मसला जो है ना वो अच्छा, आपने एक चीज़ मेंशन की थी कि ये जो नए कसाब आ जाते हैं, जी, जी। जो कहते हैं कि हम प्रोफेशनल हैं, जी। तो आवाम को मुझे नहीं लगता कि वो कम पैसे ले रहे हैं, वो इक्वली चार्ज कर रहे होंगे, लेकिन आई थिंक वो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है या झूठ बोलने वाली बात है। सही पैसे तो खैर कम ही लेते हैं, वो पूरे पैसे नहीं लेते। पैसे और कम ना ही- लेते हैं? हाँ, और ना ही लोग उनको पूरे पैसे देते हैं, क्योंकि वो नज़र आया था ना कि क्या है ये। तो लोग जानबूझ के एक जी हाँ, अनप्रोफेशनल जी को हाँ। हायर करते हैं। जी जी, यही बात है। पैसे कम लेते हैं कि चलो भाई, अब वो जो काम करने वाला वो तो जाहिर बात है अपनी मेहनत पूरी लेगा ना, बिल्कुल। समझे ना। और आई थिंक उसकी स्पीड भी ज़्यादा जिसको होगी, पता वो नहीं जल्दी जल्दी जी, करेगा, जी, जी, जी। वो स्लो काम करेगा। यही बात है। वो होते हैं बरसाती, अब वो जो काटेंगे, हमारा काटने का तरीका और ही होता है ना। अच्छा, आप क्योंकि आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है 50 इयर्स, तो आपने तो बहुत ही अलग अलग केसेस देखे होंगे, कोई बहुत सबसे मुश्किल कोई ज़िबा करने वाला कोई जानवर का केस बताएं। असल मसला ये है जानवर को काबू करना, क्योंकि ये जानवर है, अगर ये जानवर ऐसी बिगड़ बहुत जाए सारी चीज़ें वीडियोस आती है कि वो जी, भाग रही हाँ, है। हाँ, देखा ना आपने? हाँ, बहुत बहुत। तो ये होता है कि बहुत से जानवर इतने बिगड़ जाते हैं, उनको काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझे। उसको आप कैसे काबू करोगे? अच्छा, और आपका कभी कोई बंदा ज़ख्मी हुआ है या जी। आप खुद कभी ज़ख्मी हुए हैं? अल्लाह का शुक्र है, बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने इस मामले से बचा के रखा है, समझे ना। वो एक दफ़ा लड़के के हाथ पे छुरी बजाए गले पे फेरने को उसके हाथ पे आ गई थी। ये हुआ था एक दफ़ा उसने अपने 4 साल हाथ पे छुरी फेर दी 4 थी? साल पहले। जी हाँ, क्यों? वो जानवर ने ज़रा सा झटका लिया, छुरी उसके हाथ पे आ गई, बस इतना हुआ। ओह, बहरहाल तो अल्लाह का बहुत- शुक्र है, इतनी ज़्यादा नहीं, बहरहाल अल्लाह ने बचत कर लेकिन दी। उसको बहरहाल लगा है तो होगा, खतरे का राइट? काम, खतरे का काम। ये प्रोफेशन ही बहुत खतरनाक प्रोफेशन है। खतरनाक अगर आप प्रोफेशन किसी है। को बोलेंगे आप बाय प्रोफेशन कसाब है, तो वो आपसे पंगा तो नहीं लेगा। नहीं, सही बात है है, ना? बिल्कुल सही, यही बात है। वो समझता है ना, इलाके वाले समझते हैं कि ये बंदा और है, और जिससे हम वो जो बाज़ार में वो बंदा और है। पहले तो बताएं सल्ला क्या होता है? भाई हमारा सल्ला कहते हैं जानवर को जो ज़िबा करते हैं ना, छुरी एक ही हाथ में जो ना सल्ला, उसको कहते हैं कि एक ही वार में गला कट जाए, इसको कहते हैं सल्ला, समझे ना। बाकी ये कि अपने और वो अनाड़ी जो होते हैं, बरसाती जो होते हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि एक हाथ में कटना है या 2 हाथ में कटना है। उनकी छुरियाँ ऐसी होती हैं, तेज छुरियाँ नहीं होती, चलती। हाँ, तेज छुरियाँ नहीं होती। चलती उनकी, जानवर उठ के भाग जाता है। ये जो जानवर जो भागते हैं, ये ऐसे लोगों के हाथों से भागते हैं। अच्छा, आप 12 महीने यही रेट्स चार्ज करते हैं और बकरा ईद में आपकी रेट्स ऊपर जाती हैं या वही नहीं, रहती हैं? बकरीद में तो मामला ही अलग है ना। वैसे तो हमारा दुकान का काम होता है,
समझे ना, जानवर अपनी ज़िबा होते हैं, लेकिन ये कि दुकान का काम है। ये तो बकरी ईद साल का वो होता है, एक सिलसिला साल में जो होता है। बिल्कुल। अब जो रेट चलते हैं उसके हिसाब से ये रेट लगते हैं। अगर आवाम को एक मैसेज देना चाहें तो आप क्या उन्हें बोलेंगे, क्या राय देंगे? मैं अपने भाइयों को यही कहूँगा कि भाई आप लाखों रुपए का जानवर लाते हो, अब हज़ारों का जानवर नहीं है, बिल्कुल। अब लाखों के जानवर आते हैं। एक जानवर कम से कम 2 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का आता मिनिमम है, आता है ना भाई। बिल्कुल। अब इतनी मोटी आप रकम लगा रहे हैं तो किसी अच्छे आदमी को बुक करो भाई, अच्छे काटने वाले को, ताकि आपको जानवरों को सही तकमील तक पहुंचाए, वो ज़िबाई सही करे, समझे ना। आप 10-20 हज़ार बचाने की खातिर आप बरसाती को दे दोगे तो वो उसका हशर नशर कर देगा, उसको सल्ला मारना आता नहीं है उसको, समझे ना। आपका वक्त भी ज़ाया करेगा, 4-5 घंटे में वो काम करेगा, ओरिजिनल जो होगा वो 2 घंटे में करेगा। एक गाय अगर कटती है तो उसको 2 घंटे लगते हैं कम से कम। और बकरा अगर प्रोफेशनल करे तो बकरा तो उसके लिए 1 घंटे का काम है, आधे घंटे का काम, और जो अनप्रोफेशनल होते हैं वो 3 to 4 आवर्स वो लगा तो देते भाई हैं। वो तो सुबह से लेकर शाम भी कर सकते हैं। शाम? जी हाँ, वाह, एक जानवर में शाम भी कर सकते हैं, वो 6 घंटे तो करते हैं ये लोग। ओके। अब ये देखिए आपका वक्त कितना ज़ाया हो रहा है, बहुत, हाँ, ये भी देखें ना। वक्त ज़ाया हो रहा है। पैसा भी आपका, पैसा तो बच रहा है आपका 10-20 हज़ार रुपये, लेकिन वक्त कितना ज़ाया हो रहा है ये आप देखिए। आप वक्त की कदर कीजिए और ऐसे लोगों को तलाश कीजिए जो मतलब एक काम करने वाले हैं, प्रोफेशनल हो और तकबीर सही कहने वाले हो। जी, इनका जो बार बार पॉइंटर है कि तकबीर सही कहे, बिकॉज इस तकबीर अगर गलत हो तो वो कुर्बानी नहीं होती। ज़िबा ही नहीं होगा तो कुर्बानी कहाँ से होगी। बिल्कुल। असल तकबीर है बिस्मिल्लाह है अल्लाह अकबर, यानी है की आवाज़ आनी चाहिए, अल्लाह है। हमारा अकीदा है मुसलमान का कि अल्लाह है, इसी तकबीर होनी चाहिए बिस्मिल्लाह है अल्लाह अकबर। अब बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर किसी ने कह दिया, ये तकबीर थोड़ी है, अल्फाज का फ़र्क है ज़रा सा। हाँ। बिस्मिल्लाह है अल्लाह अकबर, है की आवाज़ आनी चाहिए, अल्लाह है, ज़िबा कर रहा हूँ इसको, अल्लाह अकबर, ये है तरीका, असल तरीका। अच्छा, तो मेरी गुजारिश यही होगी कि भाई आप इन चीज़ों पर ज़रा ध्यान दो, समझे, ताकि ज़िबाही सही हो, आपकी कुर्बानी भी कबूल हो। हाजी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि अक्सर लोग जो होते हैं वो जानवर को इसकी टांगें बांध के ऐसे घसीट के गिराते हैं, तो सही तरीका क्या है? सही तरीका यही है, उसको टांगें बांध के, लेकिन तरीके से होगा ना भाई। देखिए ना, वो जो टांगें बांधते हैं आपने देखा होगा कि पहले दोनों टांगें बांधते हैं वो, फिर दोनों टांगें जब बन जाती हैं फिर पिछले टांग में रस्सी वगैरह डाल के वो फिर आहिस्ते से खींचते हैं, जानवर गिर जाता है। ये तो एक तरीका हो गया। आज दूसरे तरीके की तरफ आए आप, तो वो उसका कल्ला मोड़ते हैं, उसकी गर्दन को मोड़ते हैं, गर्दन मोड़ के गिराते हैं। वो गलत है, वो ज़्यादा तकलीफ दे, जानवर के लिए वो ज़्यादा तकलीफ दे। लिहाजा बेहतर तरीका ये है टांगे बांध के गिराएं, उसको उससे तकलीफ भी कम होगी और आसानी से गिर भी जाएगा। अच्छा, और क्योंकि आपका माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो एक रैंडम सवाल है ये कि हिस्से आपको क्या लगता है, क्या हिस्से कैसे करने चाहिए? जैसे एक जानवर है और उसमें हिस्से हैं गाय में, तो वो हिस्से कैसे करेंगे? देखिए, एक गाय में 7 हिस्से होते हैं जी, समझे ना। अगर मिसाल के तौर पर ये अपने 103 मन की गाय है, समझे ना, तो उसको 7 जगह डिवाइड करना पड़ेगा, उसके गोश्त को, उसको गोश्त को बना के 7 हिस्से करने वजन के हिसाब से। अगर फसल करो 3 मन का है तो जो हिस्सा आएगा ना उसका, तो फी हिस्सा अपने 7 हिस्से निकालने पड़ेंगे, उसके 7 जगह कर दो आप, 7 हिस्से हो गए, बाकी जो बचे उसमें से बाकी सब में 7 में डाल दो। ये आसान तरीका है, आसान तरीका है, मुश्किल तरीका नहीं है। हाँ, ये 7 हिस्से होते हैं इसमें, 7 हिस्से कर दें आप। अब चाहे उसमें छोटी गाय भी ले लें आप या बड़ी गाय ले लें। वजन के लिहाज से गाय के 7 हिस्से और बकरे का तो एक हिस्सा है, बकरे का एक हिस्सा है, ओके। और उसका वजन के लिहाज से आप कर लें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हाजी साहब, आपने हमें टाइम दिया, आपके जो बिजी स्केड्यूल है। और जैसे कि आप देख सकते हैं बकरा ईद का सीज़न ऑन पीक है और हमने कोशिश की है बकरा ईद के हवाले से सारी चीज़ें कवर करें, और जो कन्फ्यूजन थी, जो सवाल थे, हमने उनसे पूछा। और मैं भी आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आपने इतना महंगा जानवर लिया है, और महंगा सस्ते की बात नहीं है,
پروفیشنل آپ کیوں ہائر کریں؟ کیونکہ جانور کو وہ اذیت نہیں دیں گے, وہ صحیح طریقے سے قربانی دیں گے. اور جیسے کہ انہوں نے مینشن کیا تھا کہ تکبیر کو صحیح طریقہ بولنا, تبھی آپ کی قربانی قبول ہوگی. تو تکبیر اگر آپ صحیح طریقے سے نہیں بولیں گے تو آپ کی قربانی قبول نہیں ہے, جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. اور کیونکہ ان کے پاس بہت 50 سال کا ایکسپیرینس ہے ماشاء اللہ سے, تو ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا. بہت سارے سوالات تھے ہم نے جو انہوں نے جواب دیا. ہمارا جو پوڈ کاسٹ کا ٹائم ہے, جو ہمارا ایپیسوڈ ہے, وہ ختم ہو چکا ہے. پلیز ڈو جوائن اس آن آور نیکسٹ ایپیسوڈ. ہمیں لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. سی یو آن دا نیکسٹ ایپیسوڈ آف ریئلٹی چیک. دس از می فیروزہ سائننگ آف. اللہ حافظ.